Hi guys, I am Vivek Kumar Sani and today is lecture 4 of our geomorphology series. Till now we have studied geological time scale and Earth's interior. Today we are going to study some of the theories as well as model which were given by geologists and geomorphologists. We will start from continental drift theory which was given by F.D. Taylor. He give this theory to explain the problem of origin and distribution pattern of whole mountains of tertiary period. So here the highlighted part is fold mountains. Okay, so what he said during Cretaceous period the Earth had two land masses. First in the northern region there was Laurasia and in the southern region it was Gondwana land. And these two land masses move towards equator, under which force? Tidal force of moon. So he gave the reason for this movement to be the tidal force of moon, due to equatorward movement of Laurasia, various landforms like Baffin Bay, Davis Strait, Labrador Sea, Arctic Sea, etc. were formed, whereas when Gondwana land moved towards equator, Great Australian Bight, Ross Sea, etc. were formed. However, his main purpose was to determine the origin of fold mountains. So, when we see the equatorward movement, then we can resemble how Himalayas or Caucasus and Alps were created. But he also gave some reason for westward movement of continents. It was some forces, and he said that it led to formation of Rockies and Andes. Rockies is fold mountains of North America and Andes are fold mountains of South America. Also, Taylor accepted Suez theory. Wait a minute. So he accepted Suez theory. Suez theory, what does it say? It says that continental crust is made up of Sial, below which is Sima, which is oceanic crust. And Sial being lighter floated on Sima. That's why continents move over, float over Sima. He said that. And in the core there is gneiss or nickel and iron. Okay, so he accepted Suez theory and gave this theory, continental drift theory. He also refuted concept of Jeffrey. What Jeffrey said? Jeffrey had said that there is a thermal cooling which leads to compression and formation of earth crust. Okay, later a similar type of theory is given by Alfred Wegener. This one is important. So why this theory was given? Earlier scientists thought that the continents always had been in the same place. उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे अभी कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले भी वैसे ही थे, पर कुछ स्कॉलर्स के मन में ऐसा डाउट आया क्योंकि कुछ उन्होंने एविडेंस देखे कि जिससे ऐसा लगता था कि ये कहीं ना कहीं मूव हुए हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक साथ फिट हो रहे हैं. कैसे? लाइक दिस इज साउथ अमेरिका एंड दिस इज अफ्रीका. सो दे आर बीइंग फिट इनटू ईच अदर. तो उन्हें लगा कहीं ना कहीं ये साथ में थे पहले. तो हिस्ट्री ऑफ थ्योरी क्या है कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी और उसने भी एडवर्ड सुएज को फॉलो किया. इससे आप क्लियर पता लगा सकते हैं कि इसने भी यही कहा कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ओशनिक क्रस्ट पे फ्लोट कर रही है. ओके, so what was the theory? He said 300 million years ago there used to be a giant puzzle piece as supercontinent, that is Pangaea. Earlier
uh, that guy Taylor said there were two continents, supercontinents that were Laurasia and Gondwana, but he said there was one continent which was 300 million years ago, presently on Earth, and it was surrounded by shallow, vast ocean known as Panthalassa. So these are important, Pangaea and Panthalassa. Later, protocontinents get started to separated. So ये कुछ एक तरीके से पैनजिया था टोटल, और ये पैंथेल्सा, और ये सब सेपरेट होने लगे. मैकेनिज्म क्या था ये ड्रिफ्टिंग का जो सेपरेशन हो रहा था कि ओशियंस आर कंपोज्ड ऑफ हैवियर मेटल देन कॉन्टिनेंट्स, जो कि स्वेस ने भी यही बोला था. दस इट डिड्यूस दैट द कॉन्टिनेंट्स लाइटर, जो लाइटर होते हैं वो फ्लोट करते हैं ओशियंस पे. बट फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही एट्रीब्यूटेड टू फोर्सेस, उसने दो फोर्सेस का नाम दिया जिसकी वजह से ये मूव हो रहे थे. ठीक है, क्या क्या फोर्सेस थे? पहला था wall fling force and second one was tidal force. Wall fling force, it is like earth is rotating around its axis. So when it rotates, then it creates centrifugal force towards equator. Okay, so that is wall fling force. And second one is tidal force, similar to F.B. Taylor. Tidal force creates westward drift of Americas, or you can say tidal force creates westward movement. So tidal force of both sun and moon is acting on earth, he said that. But Jeffrey, in his book The Earth, Its Origin, History and Physical Constitution, ये जो है इसने अपनी बुक में जिसका नाम है द अर्थ इट्स ओरिजिन हिस्ट्री एंड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में उसने क्रिटिसाइज़ किया वैगनार को कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये छोटी मोटी जो फोर्स है ना, कौन सी वॉल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, इनका कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर. हाँ, वो अपने बात में सही था जेफरी कि टाइडल फोर्स बहुत ही कम फोर्स होती है जो कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स को इधर उधर मूव करा सके. तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं रहा था. तो इसके एविडेंस क्या थे? किसी एविडेंस पे तो उसने अपनी थ्योरी दी होगी. तो एविडेंस थे जिगसॉ फिट, जो मैंने बताया कि कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं फिट हो रही हैं आपस में, तो जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पहले साथ में थी, जैसे कि साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका. सिमिलरली जब यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला है और ये अफ्रीका है, तो ये पता चलता है ये जो ना सेपरेशन हो रहा है और ये सेपरेट हुआ है. ठीक है. देन फॉसिल सिमिलैरिटी. फॉसिल्स भी एक तरीके से ऐसा है कि अगर ये सारे साथ एक साथ मिले हुए थे तो जब वहाँ की लाइफ थी, जब जो भी लाइफ थी वो सिमिलर होगी दोनों या सब सारे कॉन्टिनेंट्स पे. ठीक है. तो यही पता चला कि जैसे मेसोजोरस जो फ्रेश वाटर रेप्टाइल था वो प्रेजेंट था सदर्न साउथ अमेरिका में और सदर्न अफ्रीका में. ठीक है. सिमिलरली लेमूर्स जो वो प्रेजेंट थे, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे? दे वर प्रेजेंट इन इंडिया, माडागास्कर एंड अफ्रीका. ग्लोसोप्टेरस, ये आपने नाम सुना होगा कहाँ? जुरासिक वर्ल्ड मूवी में. ठीक है. उसमें जो जाइंट वो होते हैं डायनासोर्स, वो. तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? यू कैन सी दीज आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन एवरी कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. These are some of the fossils which are present on similar like other continents too. Then comparative stratigraphy, similar sequence of rocks at numerous location. अभी जब आप बायोजोग्राफी में पढ़ोगे तो उसमें ये पढ़ोगे कि जो सॉइल है, सॉइल के स्ट्रक्चर में बहुत सारे जोन्स होती हैं, हॉरिजॉन्स होती हैं. तो वो स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो अभी हमने ये देखा है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे सेम स्ट्रक्चर है सॉइल का, तो कहीं ना कहीं वो सिमिलर एक साथ जुड़ी हुई होंगी, तभी तो ये स्ट्रक्चर सेम है. और ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि कुछ हज़ार साल में बन जाता है, इन्हें लाखों करोड़ों साल लगते हैं स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर बनने में. ठीक है. देन हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. मिक्स सीक्वेंस ऑफ ग्लेशियल एंड मैरीन डिपॉजिट्स इन बोथ साउथ अफ्रीका एंड South America confirmed two land masses had been joined.
तो जो ग्लेशियर और मेरीन डिपॉजिट्स हैं साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका में, तो वो बताते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे पहले। सिमिलरली कैलेडोनियन माउंटेन्स ऑफ स्कॉटलैंड, नदर्न आइलैंड हैव सिमिलैरिटी विद एज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एप्लेशियन माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। एप्लेशियन माउंटेन्स जो कि हमारे किधर है, हाँ ईस्ट में है नॉर्थ अमेरिका के, और कैलेडोनियन माउंटेन्स ये हमारा पूरा वेस्ट ऑफ यूरोप कह दो, ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। और फिर है नया एविडेंस, द आइस मैचेस ग्लेशियर एंड टिलाइट व्हेन दीज ऑल वर प्रोटोकॉन्टिनेंट। तो आइस एज जो हुआ तो वहाँ पे ये सारे कॉन्टिनेंट्स पे बर्फ हुआ, आइस एज का असर हुआ, मतलब वहाँ पे ग्लेशियल डिपॉजिट्स भी मिले। तो इनमें डेटिंग के हिसाब से, रेडियो एक्टिव डेटिंग के हिसाब से ये पता चला कि लगभग सबकी एज सेम है और सबका करेक्टर भी सेम है। ठीक है, ये तो सब हुए एविडेंसेस। अब इसकी चैलेंजेस और शॉर्टकमिंग्स देख लेते हैं। तो इट फेल्ड टू प्रोवाइड साउंड मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। इन्होंने कहा कि टाइडल फोर्स और पॉल फिलिंग फोर्स, ठीक है, पॉल फिलिंग फोर्स का अगर हम एक बार को मान भी लें, देन हाउ टाइडल फोर्स कैन बी सच पावरफुल टू मूव कॉन्टिनेंट्स। अगर वो इतनी पावरफुल है तो वो जो अर्थ की रोटेशन है उसको भी रोक सकती है। ठीक है, तो पहले शॉर्टकमिंग्स तो ये है। दूसरा, हाउ एंडीज एंड रॉकीज अटेंड दिस मच हाइट, दैट ओनली 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सच हाइट। लगभग 8000 मीटर की हाइट है रॉकीज जो है, एंडीज की हाइएस्ट जो है। तो इस हाइट के लिए सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर की मूवमेंट ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग बता रहा है। देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वुड हैव कॉज कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स नियर द इक्वेटर। और ऐसा है क्या, इक्वेटर के पास में कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये इवनली तो नहीं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे अर्थ के सरफेस पे। ये हो गया। वैगनर एक्सेप्टेड द स्वेस थ्योरी दैट सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा, बट दिस असम्पशन इज रॉन्ग। अभी हम आगे देखेंगे कि स्वेस थ्योरी जो है, जिसमें जो ये कहती है सियाल दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लोट्स ओवर सीमा, ये अपने आप में गलत है। Then he said that the island arc is because of differential rate of continental drift, but later it was found that Indonesia, Philippines was never part of continent। तो अल्फ्रेड वैगनर ने क्या बोला था, जब ये मूव कर रहे थे तो लाइक दिस इज अ कॉन्टिनेंट, इट इज़ मूविंग इक्वेटर वार्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका जो नदर्न पार्ट है ये तो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा था, पर ये जो सदर्न पार्ट है ये बहुत धीरे धीरे। तो जब ये मूव कर रहा था, आगे बढ़ा, तो इसका जो पीछे के पार्ट है ना वो पीछे रहते चल गया, और इसी वजह से ये आइलैंड बन गया। ठीक है, तो इससे ये, पर इसमें ये शॉर्टकमिंग्स रही कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, इसका अगर हमने वो लगाया है, हिस्ट्री देखिए, पास देखा है, तो ये पता चला है कभी भी कॉन्टिनेंट के पार्ट नहीं रहे। तो फिर ये भी एक चैलेंज है। ठीक है, सेम फॉसिल्स जो हमने अभी देखे, ग्लोसॉप्टोरस, सिग्नेथस, लैमोर, तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से ये भी तो हो सकता है कि सिमिलर रेट ऑफ इवोल्यूशन था, तो इस वजह से सिमिलर फॉसिल्स हमें मिले हैं। ये भी एक केस है। ही डिडंट प्रोवाइड द क्रोनोलॉजी एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसने बस बता दिया कि इक्वेटर वर्ड मूव करा और वेस्ट वर्ड मूव करा, बट ही डिडंट गिव द एक्चुअल लोकेशन knowledge for in this theory। ठीक है, then came the convection current hypothesis by Arthur Holmes। जब अल्फ्रेड वैगनर ने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दे दी, तो इसके शॉर्टकमिंग्स देख के आर्थर होम्स ने 1928 से 29 में समझाने की कोशिश की जो प्रॉब्लम्स है ना किस चीज़ की। He tries to explain intricate problems of origin of major relief features of Earth's surface। He said that driving force of mountain building is provided by thermal convection current originating within the Earth। These currents are due to disintegration of radioactive elements which provided the heat for the current। सिंपली एक केस लें कि आपने ये चूल्हा है, आग जला दी, ठीक है, एक बड़ा सा टब है यहाँ पे, उसमें पानी है, तो अब क्या होगा, यहाँ का पानी तेज़ी से गर्म होगा,
अब जो डिफ्यूज़न वाला और कंडक्शन वाला जो इवेंट होता है वो होगा, पानी जो है मूव करना शुरू करेगा इधर से इधर। इसके ऊपर एक बॉल है और इधर भी एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। तो क्या होगा, ये बॉल भी इसके साथ साथ इधर इधर मूव करनी शुरू करती है, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट इसने दिया है आर्थर होम्स ने। इसने बोला है कि द ड्राइविंग फोर्स ऑफ फॉर माउंटेन बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड बाय द थर्मल कन्वेक्शन करंट ऑरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ। These currents are due to disintegration of radioactive material which provide the heat for the current। तो कुछ ऐसा है कि मान लो ये सरफेस है, इसके नीचे कहीं रेडियो एक्टिव मटीरियल है जिसे हम मेंटल फ्लूम बोल देते हैं, ठीक है। वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, हीट मिलती है। जो न्यूक्लियर हमारे न्यूक्लियर एनर्जी हो कैसे मिलती है, वो इसी तरीके से मिलती है, ठीक है। तो हीट प्रोवाइड कर रहा है और हीट प्रोवाइड करने के साथ साथ जो यहाँ का मैग्मा है वो राइज कर रहा है और राइज करके इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से ये जो सरफेस है वो इधर इधर मूव कर रही है। ये कहीं ना कहीं एक साइकिल बना रहा है। फिर ये यहाँ पे जब कूल डाउन हो जाएगा, जो हॉट मैग्मा था ये नीचे आ रहा है, सब्साइड करना शुरू हो जाएगा, ऐसे एक साइकिल बन जाएगी। तो आर्थर होम्स ने क्या बोला, आर्थर होम्स ने कहा क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स विच इज़ ग्रैंड्यूराइट, एम्फीबोलाइट एंड इक्लोबाइट। और जो मेजर कंपोनेंट है इसमें सियाल का कंपोनेंट है, ठीक है, SiAl, दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। एंड बिलो इट इट इज सबस्ट्रेटम, दैट इज सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। He said that Sima, that is substratum, is heavier compared to Sial, that is crust। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे, और substratum जो है molten form में है। एक तरीके से ये अगर हम उसकी बात करें प्रेजेंटम में प्लेट टेक्टोनिक में क्या बोला गया है, ये एस्थेनोस्फेयर है, ओके। तो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर क्रस्ट है, और ये क्रस्ट उसने ऐसा नहीं कहा कि ये सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट है, सिंपली इसने ये बोला। तो क्या, अब जब यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो हीट प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ से मैग्मा राइज करेगा, फिर वो डाइवर्ट होगा और जिस वजह से इसमें कॉन्टिनेंट भी इधर उधर मूव करेगा। सिमिलरली अब ये यहाँ से असेंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं कूल डाउन भी होगा और डिसेंड भी होगा, तो एक साइकिल बन जाएगी, जैसे मैंने ऊपर समझाया। तो द कंडक्टिव करंट डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स, थिकनेस ऑफ क्रस्ट नियर द इक्वेटर एंड द पोल्स, एंड सेकेंड इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द क्रस्ट। कंडक्टिव करंट किस चीज़ पर डिपेंड होगी, जितना ज़्यादा जितनी मोटी क्रस्ट होगी उतना ही वहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा मूव होने में, ठीक है। जितनी पतली क्रस्ट होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। और दूसरा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अभी आप ये भी कह सकते हो सर ऐसे तो आपको कहीं भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिल जाएंगे, तो क्या हर जगह ये ऐसा मूवमेंट होगा, क्योंकि पहली बात यही है ना कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें नहीं पता कि कहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा है, पर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं और वहाँ पे हीट मिल रही है, ठीक है। देन अ न्यू स्टोरी वाज गिवन बाय हैरी हेस, इट वाज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ही सेड दैट पहले क्या होता था, पहले लोगों को लगता था ओशंस ना बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, पर बाद में पता चला कि ओशन प्लेन नहीं है, वहाँ पे माउंटेन्स टाइप लैंडफॉर्म भी हैं जिसे हम रिजिज बोल देते हैं। रिजिज हैं, गोट्स हैं, ट्रेंचेस हैं, ये सब भी हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि अब लैंडफॉर्म है, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स में लैंडफॉर्म है, उनके सबके अंदर जिज्ञासा जागी कि कैसे कैसे बने। तो सिमिलरली जब ये पता चला ओशनिक क्रस्ट पे भी लैंडफॉर्म है, तो वो भी इच्छा उनकी हुई कि पता करें कैसे बने। तो फिर ये पता चला कि ओशन जो है फ्लैट नहीं है और हैव डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म, जैसे मैंने बताया, इसे हम बोलते हैं गोट्स एंड दीज आर ट्रेंचेस। ओशन comprise of basaltic rocks and not just extension of continents। जो ओशंस हैं वो बेसाल्ट के बने होते हैं, बेसाल्टिक रॉक, और जो बेसाल्टिक रॉक होती हैं वो हैवियर होती हैं, ये याद रखना।
और जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं, वो एंडेसिटिक रॉक से बने होते हैं। मैं ये पढ़ाऊँगा, मैफिक साइकिल है, अल्ट्रा मैफिक साइकिल एंडेसाइटिक रॉक से बने होते हैं जो कि लाइटर होती है। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई हैरी हेस इन 1960 ड्यूरिंग ग्लोमर एक्सपेडिशन ऑफ अटलांटिक ओशन। ग्लोमर एक्सपेडिशन में क्या हुआ था कि उन्होंने MOR फाइंड कर लिया था, मिड ओशनिक रिज। साइंटिस्ट फाउंड दैट देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन द टू डिफरेंट रॉक्स हैविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द MOR, दैट इज मिड ओशनिक रिज। तो यहाँ पे ऐसे ये मिड ओशनिक रिज है, मान लो यहाँ पे अगर रिज मिले हैं हमें, ये रिज मिले हैं तो दोनों साइड रिज ही मिलेंगे। अगर इधर हमें गोट मिला है लगभग सेम डिस्टेंस पे इधर भी हमें गोट मिलेगा। तो ये क्या डिटरमाइन कर रहा है कि जैसे जैसे दूर हो रहे हैं सिमिलरिटी मिलती जा रही है रॉक्स की। तो हैरी हेस ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक थ्योरी दी। ही सेड दैट MOR is continuously emitting magma due to divergence and due to mental convection current. कन्वेक्शन करंट, मेंटल कन्वेक्शन करंट किसने दिया था? अभी ऊपर जो मैंने समझाया है आर्थर होम्स ने, कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो मेंटल कन्वेक्शन करंट जो है इसने आर्थर होम्स ने दिया है उसको ही अप्लाई इसने हैरी हेस ने किया है। He said that the magma gets cooled and form the oceanic floor on the both side of MOR tank. Thus there is long linear volcanic ridges of magma. तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो कैसा हुआ। जो आर्थर होम्स है वो ये बोलता है कि यही जो प्लेट्स नहीं है अभी, जो क्रस्ट का मूवमेंट है वो कैसे कैसे होता है, कन्वेक्शन करंट की वजह से। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट इसने लगाया है। यहाँ से जब हमारा मेंटल जो ऊपर राइज कर रहा है तो वो अर्थ सरफेस पे कहीं पहुँच जाता है, जब ये डाइवर्ज होते हैं तो और वो यहाँ पे कूल डाउन हो जाता है जो कि एक नई सरफेस बना देता है। और ये जो कूल डाउन होता है ना लगभग वोल्केनिक रिजेस बनाते हैं। ठीक है, लीनियर वोल्केनिक रिजेस ऑफ द मैग्मा, और ये अपना डाइवर्ज होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सी फ्लोर बढ़ रहा है, सी फ्लोर स्प्रेड है, मतलब इधर ये क्रस्ट इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, तो स्प्रेड हो रही है और नई क्रस्ट यहाँ पे बनती जा रही है MOR पे। तो इसी वजह से इसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। विद फर्दर इरप्शन ऑफ मैग्मा एंड डाइवर्जेंस द यंग वोल्केनिक रॉक्स डिस्प्लेस द ओल्डर वोल्केनिक रॉक्स अवे फ्रॉम द MOR। जैसे जैसे ये यहाँ से इरप्शन होता रहता है तो यहाँ की जो रॉक है वो इधर शिफ्ट होती रहती है, यहाँ की जो रॉक है वो इधर शिफ्ट होती रहती है और नई वाली रॉक यहाँ पर आती रहती है। ठीक है, बट अ क्वेश्चन अराउंड इफ ओनली डाइवर्जेंस एज इज ओनली देयर ओनली दिस इज प्रेजेंट देन अर्थ सरफेस वुड हैव बीन इंक्रीज इनॉर्मसली, दस ही साइड फॉर कन्वर्जेंट बाउंड्री। अभी उसने ये तो बोल दिया कि डाइवर्जेंस हो रहा है MOR पे, पर अगर सिर्फ ऐसा ही होता कि सिर्फ डाइवर्जेंस ही हो रहा होता तो क्या होता कि अर्थ की सरफेस इतनी ज़्यादा हो जाती कि कोई टेंशन नहीं होती, वाह बहुत ही बड़ी हो। पर नहीं, उसने कहा कि अगर डाइवर्जेंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस हो रहा होगा। कन्वर्जेंस हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई, जैसे ये दो वो है क्रस्ट है, ये वाली क्रस्ट के नीचे ये वाली सबसाइड हो रही होगी जिससे कि ये डिस्ट्रक्ट हो रही होगी। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री को हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। इसके जो एविडेंस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का वो मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस से मिला है, जो किसने बताया है, वाइन एंड मैथ्यूज ने। They said that magma coming out and get cooled acquired the present geomagnetic position of Earth. Thus, it was found that the rocks having at equal distance from MOR in opposite direction are found to be of same age and same polarity. वाइन और मैथ्यूज ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही। उसने कहा कि जो मैग्मा है जो अर्थ सरफेस पर आ रहा है वो वहाँ पे कूल डाउन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जिस उस टाइम जो अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब डायरेक्शन जो भी है, मान लो डायरेक्शन ऐसी है अर्थ की, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसकी, तो जो वहाँ का जो मेंटल वहाँ पे बाहर आया है और कूल डाउन हुआ है तो वो सेम प्रॉपर्टी अटेन कर लेगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग
मैग्मा बाहर आया, ये वाला पहले आ गया, ये बाद में आया, ये और भी बाद में आया। तो मान लो उस टाइम नॉर्थ इधर था, ठीक है, तो ओके कुछ गलत हो गया, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे नॉर्थ आ गया, यहाँ पे नॉर्थ आ गया, ठीक है। क्या हुआ कि उस टाइम मान लो नॉर्थ इधर था, इधर जिधर अभी है ऊपर नॉर्थ की तरफ, तो दोनों तरफ नॉर्थ। फिर उसके बाद में जो मैग्मा आया वो कूल डाउन हुआ, और उस टाइम जो अर्थ की मैग्नेटिज्म थी वो कुछ ऐसे थी कि जो अभी हमारा साउथ है उधर की तरफ नॉर्थ था, तो वो वैसी ही प्रॉपर्टी अटेन कर लेगी वहाँ की रॉक, तो वैसी ही प्रॉपर्टी अटेन कर ली गई यहाँ पे और यहाँ पे सिमिलर। फिर आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले क्या, जो उसके बाद हुआ उसमें ये हुआ कि नॉर्थ जो मैग्नेटिक वो था, एंगल था, वो ऐसा था कि नॉर्थ इस टाइम पे नॉर्थ में, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज ने अटेन कर ली, तो नॉर्थ इसी जो ये इवेंट है तो हम बोल रहे हैं पैलियोमैग्नेटिज्म, और ये ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझाने के लिए, ठीक है। ये बताया गया कि यहाँ से मेंटल से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, देन इट द मैग्मा राइजेस एंड देन इट गेट्स disintegrated. He also talks about conversion, then when it cools down it gets subside. Similarly another cycle is formed here and it also gets things subsided. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है, तो मतलब कन्वर्जेंट हो रहा है एक दूसरे में। ये जो वो है क्रस्ट है, ये सबसाइड हो रही है इस वाली क्रस्ट के नीचे, तो ये सबसाइड होती जा रही है, और इस वजह से जो लगभग हमारा है सी जो अर्थ की क्रस्ट है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय एफ बी टेलर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय एल्फ्रेड वेगनार, देन कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस बाय आर्थर होम्स, देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ इसको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, क्योंकि अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देखने में आपको वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।